Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Today in this video lecture, I am going to teach you how to use the object. Have you heard about the object? The object that makes sentence more meaningful. The object that receives action of the verb. Sometimes that may be affected by preposition. If you use the preposition, that may be affected by that preposition. But in this video lecture, if you have any doubt, if you want to be all your doubt cleared, if you have any doubt, if you have any question regarding object, I will clear all those doubts, all those questions in this video lecture. But I will request you to please watch previous video lecture, because in that previous video lecture I have covered the basic which is related to this session. And the basic was that how to make a single sentence, very small sentence. For example, by using a subject and verb, how to make a single sentence. Because when someone want to learn, when someone want to speak in English, he or she must understand how to make a sentence. Sometimes we can also call that as a sentence structure, because our conceptual clarity should be good. We should be not weak in that particular point. So coming to the main point, in this video lecture I will explain all the things related to the objects, and with this conceptual clarity I will take so many examples so that you can connect yourself to the object and you can understand everything. Clear? चलो, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कर्म. ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म. इतना क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा तब तक आपको अच्छे से मतलब उसका यूज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. बाद में उसका यूज करने का जो भी फंडा है सबके सब क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपको पता है सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. सेम गोज टू द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में प्रोनाउन या फिर नाउन, इससे क्या बनता है? इससे बनता है ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बनता है, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ये एक या तो प्रोनाउन होगा या तो फिर नाउन होगा. यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये हुई ऑब्जेक्ट की मतलब प्रॉपर्टीज़. मतलब ऑब्जेक्ट जो बनता है ना, तो एक तो उसमें एक तो प्रोनाउन होता है या तो फिर उसमें नाउन होता है. यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं मेन मुद्दे पे. मुद्दा ये है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लेते क्यों है, ये बताओ सर पहले. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. क्या मीनिंगफुल बनाना है क्या? यस सर, वी वांट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सो इफ यू वांट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, देन यू हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट. यू हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट. व्हाई? जस्ट व्हाई? लेट मी क्लियर यू. Let us take an example. If I write a letter. What is the letter? This is an object, sir. Okay, this is an object. Okay, let me clear. I will break down the sentence first in 3 segments. First, I is the subject. Do you know I is the subject? Because the subject, what is the properties of subject? Noun, otherwise pronoun. Noun, otherwise pronoun. These are 2 words can be subject. Okay, what is the right? What is the part of speech of right? It is a verb, sir. It is verb. Verb माने क्रिया. Next one, object. So is this object? So blindly you don't say this is object, sir, because after verb there is always verb. There is always object. This is incorrect. बिकॉज देर इज़ अ वे. ग्रामर में ऐसा नहीं होता है कि वर्ब के बाद मतलब क्रिया के बाद हमेशा 100% ऑब्जेक्ट ही आता है. बिल्कुल गलत. और यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए. तो समझो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कभी कभी हो भी नहीं सकता है. कभी मैं एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ. मैं आपको क्लियर मतलब डाउट में नहीं रहना. सब मैं मतलब एग्जाम्पल के साथ आपके सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ. यहाँ पे आपको समझना क्या है, इतना आप फोकस करो. सिर्फ आपको ये समझना है कि ग्रामर में एक प्रोसेस है, इसमें एक
रूल है जिसके द्वारा ही आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर कौन से भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट होते हैं वैसे में दो प्रकार के, ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के। मैं शॉर्टकट में आप यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से होते हैं सर? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको मैं डी फॉर डायरेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। दूसरा होता है सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के। अच्छा, ऑब्जेक्ट कभी कभी मैंने जैसे पहले कहा ना आपको कि प्रीपोजिशन के बाद भी आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आप ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे पे। पहले हमने क्या मतलब पढ़ा था, मतलब पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब से, मतलब बेसिक पढ़ा था ना पहले वाले में, पहले वाले वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के यूज़ करके, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ करके हम आसानी से मतलब स्मॉल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा उसको ना एक्स्ट्रा ऐड करने वाले, उसमें थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, और वो है ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं सेंटेंस में, वो कैसे पहचानेंगे? पहले इस पे आप आते हैं मुद्दे पे। वर्ब को है ना, वर्ब मतलब क्रिया को हमको व्हाट से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट, या फिर हुम से प्रश्न पूछना है। क्लियर हुआ? व्हाट या हुम से पूछना है प्रश्न, सवाल। व्हाट या हुम से हमें यहाँ पे पूछना है, किसको? वर्ब को। अगर आंसर आया तो समझो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला कि आई राइट अ लेटर, तो फिर मैं आई को व्हाट से क्वेश्चन मतलब ये नहीं पूछ सकता, मैं मुझे वर्ब को पूछना चाहिए कि व्हाट, राइट व्हाट, मतलब क्या लिखता है, मतलब मैं क्या लिखता हूँ, तो आंसर आएगा लेटर। तो आंसर आया तो इसका मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट है। राइट व्हाट मतलब क्या लिखता है, तो इसका आंसर आया लेटर, तो लेटर क्या बना? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर व्हाट से आंसर आता है, व्हाट से, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हुम से आंसर आता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? इफ यू गॉट द आंसर बाय हुम, इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ यू गॉट द आंसर by using the same way but the another word, WH family word, what, that is direct object। what का आंसर आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom का आया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको है ना यहाँ से इतना क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में मतलब वर्ब के बाद हमेशा आता नहीं। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है, वो तरीका है व्हाट से पूछेंगे वर्ब को, सिर्फ वर्ब को ही क्वेश्चन करना है, वर्ब को ही क्वेश्चन करना है। अगर वर्ब ने उत्तर दिया तो समझो व्हाट से पूछा और वर्ब ने उत्तर दिया, मतलब क्या लिखता है, तो क्या लिखता है? लेटर, आंसर आया। क्लियर? अब राइट के बदले वहाँ पे कौन सा भी वर्ब हो सकता है। तो अगर आंसर आया व्हाट का तो समझो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको क्लियर ही कर देता, ठीक है। मैंने अगर लिखा यहाँ पे आई राइट अ लेटर टू हिम, बताओ, आई राइट अ लेटर टू हिम। अब यहाँ पे मुझे पूछना है कि आई राइट लेटर, राइट हुम मतलब किसको लिखा, तो हुम का भी मतलब यहाँ पे मेरे को आंसर मिला, तो हुम मतलब किसको लिखा, उसको लिखा, किसको लिखा, मैं लेटर लिखता हूँ टू हुम। क्लियर? टू हुम, तो टू हुम क्या है, ये है सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कब चलता है वर्ब को हुम से क्वेश्चन पूछने से। वर्ब को जब होम से क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमें इनडायरेक्ट आता है, और व्हाट से पूछेंगे क्या लिखा, तो सिर्फ लेटर व्हाट का आंसर आया तो समझो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक किसको डाउट है क्या? डू यू हैव अ डाउट? इफ़ यू हैव डाउट प्लीज़ आस्क मी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ? कोई सिंगल डाउट भी नहीं चाहिए यहाँ तक। मतलब ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर? चलो अब बनाते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। मैंने अगर लिखा यहाँ से, मतलब यहाँ से
शुगर के बदले हम दूसरा लेंगे, काउज, काउज ईट ग्रास। नेक्स्ट पहले वाला भी लेंगे यहाँ पे, शुगर ईट्स स्वीट। और एक लेंगे, कैट एट फिश। और एक लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा जॉन राइट 1000 लाइन्स ऑफ पोएम। बताओ कितने सेंटेंस लिए, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ये इतने सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिखे। क्लियर, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही यहाँ पे मैंने इतने सेंटेंसेस लिखे। बताओ अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताना है कि पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बताओ पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बताओ जल्दी से। यहाँ पे अगर मैंने पूछा कहाँ से मतलब वर्ब को पूछना चाहिए ना मुझे, व्हाट क्या खाती है, तो आंसर आया ग्रैश। क्लियर, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ सर। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ सर। ये क्या हुआ सर, वर्ब हुआ। नीचे वाला बताओ, शुगर कैसी है, स्वीट है। आप देखो शुगर इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, व्हाट का आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्वीट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और हुम का भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे व्हाट और हुम का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्वीट जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ कि यहाँ तक, मतलब सेंटेंस में वर्ब को अगर इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो यहाँ पे तो इजी है। क्लियर, लेकिन वो व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। वो मोर ये स्वीट जो किसकी विशेषता बता रहा है, शुगर की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा पहचानना है ऑब्जेक्ट को। क्लियर हो रहा। नेक्स्ट वाला, कैट एट, मतलब कैट ने खाई, क्या खाई, फिश। अब कहाँ पे प्रश्न पूछना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा सर क्या, व्हाट, क्या खाया, तो फिश। क्लियर, कैट ने क्या खाई, फिश खाई, तो व्हाट का आंसर आ रहा है, यस, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वाला, अब ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस को मुझको पूछना पड़ेगा वर्ब को, इसको यहाँ पे पूछना क्या लिखा, तो आंसर आ रहा है 1000 लाइन ऑफ पोएम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो तुम 1000 लाइन्स पोएम। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, पोएम। क्लियर, आसान सेंटेंस है, आसानी रखता। क्लियर, 1000 मतलब क्या लिखा, तो आंसर आ रहा व्हाट का आंसर आया। कहाँ, किसको पूछा मैंने, वर्ब को पूछा, तो क्या लिखा उसने, तो 1000 लाइन की पोएम निकाली, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ सर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या। लेकिन आप में से कोई मतलब स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि उसको लगता होगा सर यहाँ पे तो राइट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा समझ में आ रहा, तो इतनी सी एक कॉमा, सेंटेंस का एक कॉमा ही सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल देता है। जॉन, और जॉन के बाद कॉमा है, अगर जॉन के बाद का ये कॉमा मैं यहाँ से हटाऊंगा, देखो ये समझना। क्लियर, ये कॉमा अगर मैंने यहाँ से हटाया तो आप मेरे को यहाँ पे राइट्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने लगाया था कॉमा, देखो वहाँ पे है ना, था क्या, नहीं बताओ, ये वाला कॉमा था, वहाँ पे क्या था, कॉमा था सर, था ना ये वाला, इसीलिए राइट सेंटेंस। तो सच में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जॉन पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन का एम्फेसिस किया जा रहा है, जॉन को लिखने के लिए बोल रहा है कि जॉन क्या करो कि 1000 लाइन की पोएम लिखो, लिखता है जॉन राइट्स, वो लिखता है, मतलब जॉन को है ना इससे सेपरेट किया जा रहा है कॉमा से, तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो वो, अभी वो काम करना है हमारे। फिलहाल इस सेंटेंस में इतना ही, मतलब अलग अलग ये बड़ा सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस में क्यों ले रहा, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी की लेवल मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब ये इस तरह से अगर तुम पहचानेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पहचानने की आदत है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये बेसिक चीज़ें अगर क्लैरिटी के साथ आपकी क्लियर होती है, तो मेरे हिसाब से और आने वाले टाइम में आपको आसानी से सेंटेंस बनाने में भी और
प्रॉपर वे में आपको सेंटेंस बनाने या बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? तो ये बेसिक है, इसके बिना नहीं चलेगा। क्लियर? सेंटेंस अब मैं ऐसा भी पढ़ा सकता था आपको कि आई राइट अ लेटर, तो मतलब और उसका हिंदी में मीनिंग बता देता, तो इससे नहीं होता। फंडामेंटल क्लियर करो, उसके बाद आने वाले टाइम में मैं वो करने वाला हूँ, लेकिन पहले ये क्लियर होना चाहिए जो अभी मैंने बोला ना, ये क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब उसके तरीके कौन से होते हैं, कहाँ पे आता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने अभी बोला उसको वाट आर होम का आंसर ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसमें स्वीट जो है ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लास्ट वाले सेंटेंस में वो जो वर्ब का केमिकल लोचा था, तो ये भी मैंने एक सिंपल कॉमा की वजह से यहाँ पे राइट लिखना पड़ा। अगर कॉमा हटा दूंगा तो वहाँ पे राइट्स लिखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जब तक आप समझ नहीं सकते ना, तब तक आपको समझने की वो हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, वो हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैंने आपको टाइप 1 के सेंटेंसेस जो लिए थे उसमें मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाना है, और इस वीडियो लेक्चर में हमने ये क्लियर किया है कि ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है कि आपके नोटबुक में कम से कम एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट आपको डालना है। इनडायरेक्ट डालो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ, ताकि क्लियर आज का सेशन आपको थोड़ा याद रहेगा ना। फिर अगर यहाँ पे लिखा सी गेव, इजी सेंटेंस है, सी गेव मी अ पेन। अब बताओ यहाँ पे ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इस सेंटेंस में सी गेव पेन। अब सी गेव पेन ये भी सेंटेंस है या? चलो ऐसे बताओ, चलो सी गेव पेन बताओ आप। अब लिख तो दिया, तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, बाद में इसको थोड़ा फर्दर वे में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सी गेव पेन, सी गेव अ पेन। अब ये सी गेव व्हाट, अब इसको पूछा मैंने व्हाट क्या दिया उसने, क्या दिया? तो पेन दिया, तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में। लेकिन मैंने ऐसा बोला सी गेव मी, सी गेव मी अ पेन। अब बताओ सी गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है क्या इस सेंटेंस में? इतना बताओ सिर्फ, इस सेंटेंस में लास्ट वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, इतना बताओ। सर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है? ये है सर इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि होम से क्वेश्चन करना पड़ेगा, वर्ब को पूछना पड़ेगा कि किसको दिया, तो होम का आंसर आएगा मुझको दिया। सी गेव मी, तो इसका मतलब हुआ कि मी जो है इसमें वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सी गेव व्हाट का भी आंसर दे रहा है, ये तो व्हाट का भी आंसर दे रहा है सर, कमाल है। हाँ व्हाट का भी आंसर दे जाएगा, यहाँ पे व्हाट का भी आंसर मिलेगा। क्लियर? व्हाट, सी गिव मी व्हाट, तो उसका आंसर आ रहा है पेन। तो पेन क्या है इस सेंटेंस में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक सेंटेंस में कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है, जब तक तुम क्लियर नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले फंडामेंटल्स क्लियर करो, बाद में जो ना एक्सपर्ट की जो है ना राह पे चलो। इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, as usual you can ask me in comment box, I will definitely answer that. Thank you so much.